Good morning, students. How are you all? I am hoping that you all are safe and fine at home. Yesterday we started our chapter 12, that is reproduction in plants. And in this topic, in this chapter, we have covered we have started the topic asexual reproduction in plants. And in this particular topic, we have covered budding, spore formation and fragmentation. So afterwards, I have sent it one video also. I think so you all have watched the video. By visualization, always the concept become more and more clear. ठीक है? So yes, now our today's topic is again asexual reproduction in plants, but उसमें हम क्या करने वाले हैं? The vegetative propagation. ठीक है? So yes, the topic remains the same, but the sub part or the subtopic is different. That is vegetative propagation in plants. So yes, vegetative propagation means, so yes, as we are doing the reproduction, that means new plant will be grown. So yes, by which part it is growing? It is growing by the vegetative parts of the plants like roots, leaves, stem and buds. तो अगर roots, stem, leaves और buds, अगर इन पार्ट से अगर प्लांट नया प्लांट ग्रो होता है, that means the new plant is growing by the process of vegetative propagation. ठीक है? So one by one we are going to discuss all these parts in detail. So first one is the vegetative propagation by stem. Yes, you know that stem, you know that plant. This is plant. This is the simplest plant I am drawing here. So yes, basically what? This is stem, this is flower, these are leaves, these are nodes, and this particular gap, the gap between two nodes is known as internode, and this is root. So basically these are the parts of the plants. Now in this particular topic we are discussing about the vegetative propagation by the stem. तो हम लोग stems के through करने वाले हैं कि stems के through क्या क्या किस तरह से नया plant grow करता है. तो the first one part is by stem tuber. तो ये स्टेम ट्यूबर क्या होता है और इससे नया प्लांट कैसे ग्रो करता है, हम इस टॉपिक में पर्टिकुलर ये करेंगे. ठीक है? तो यस, बेसिकली इट इज द पार्ट ऑफ द प्लांट ओनली, इट इज द पार्ट ऑफ द स्टेम ओनली. लेकिन कई बार क्या होता है कि दिस पर्टिकुलर स्टेम आर व्हाट पार्ट ऑफ द प्लांट? स्टेम्स आर द पार्ट ऑफ द प्लांट विच इज जस्ट ग्रोइंग अबव द रूट्स और विच आर प्रेजेंट आउटसाइड द रूट लेवल. तो हमें वो आउटसाइड द ग्राउंड लेवल जो हमें दूर से दिखाई देता है. ठीक है? लेकिन कई बार क्या होता है कि ये जो हमारे पास स्टेम होती है ना, ये अभी पूरी तरह से बाहर नहीं निकली होती है और इसका कुछ पार्ट अभी अंदर होता है, सॉइल के अंदर होता है. तो ये पार्ट फूल जाता है और फूलने के बाद हम इसको अलग अलग नाम से पुकारते हैं. ठीक है? तो बेसिकली प्लांट इज स्टोरिंग इट्स फूड इन दिस अंडरग्राउंड स्टेम विच इज स्वॉलन. अगर वो फूड स्टोर करेगा तो वो पार्ट धीरे 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 करके फूलता जाएगा, स्वेलो होता जाएगा और अल्टीमेटली इट विल एक्वायर द शेप ऑफ सम फ्रूट्स और वेजिटेबल. ठीक है? जिनको हम खाते हैं. ऑब्वियसली वी आर ईटिंग दैट पार्ट ऑफ द प्लांट विच आर गिविंग अस एनर्जी. एनर्जी कौन सा पार्ट देगा? जहां पर खाना है, खाने से एनर्जी मिलती है. और प्लांट का खाना जनरली जो उसकी फ्लावर्स, फ्रूट्स होते हैं या फिर जो उसके वेजिटेबल्स होते हैं वहां पर वो स्टोर करता है. लीव्स आर मेकिंग द फूड फॉर द प्लांट्स. लीव्स फूड बनाती है लेकिन उसके बाद वो स्टोर होता है अलग अलग पार्ट्स में. तो वो अलग अलग पार्ट्स क्या हैं जिनको हम खाते हैं एज अ फूड, वो हम डिस्कस कर रहे हैं. तो फर्स्ट वन इज द स्टेम ट्यूबर, जहां पर स्टेम पूरा का पूरा ग्राउंड लेवल से बाहर नहीं आया है. स्टिल सम ऑफ द पार्ट ऑफ द स्टेम इज अंडर द ground level and it will swallow because of the accumulation of the food here. And in this particular part, in case of potato, is known as tuber. The swollen part of the stem which is present underground to the soil
is known as stem tuber in particular case of potato. पोटैटो के केस में जो ये स्टेम अभी अंडरग्राउंड है, अंडरग्राउंड का मतलब अभी सॉइल के अंदर है, ठीक है। तो यस, पोटैटो के केस में जब ये अंडरग्राउंड स्टेम स्वेलो हो जाती है अपना फूड स्टोर करने के लिए, तो हम इसको स्टेम ट्यूबर बोलते हैं। एंड वी हैव सीन द पोटैटो मेनी अ टाइम्स। इट इज द मेन जो वेजिटेरियन लोग होते हैं, मेन फूड इज पोटैटो। किसी ना किसी फॉर्म में, किसी ना किसी सब्जी में आपको मिल ही जाता है। तो यस, बेसिकली द शेप ऑफ पोटैटो इज लाइक दिस एंड इट इज हैविंग आई इन इट। आपने स्कार लाइक स्ट्रक्चर देखा होगा पोटैटो में। सो बेसिकली दीज आर नोन एज आई ऑफ द पोटैटो एंड ईच आई ऑफ द पोटैटो इज हैविंग द एबिलिटी टू ग्रो इनटू द कंप्लीट प्लांट। तो हर पोटैटो का हर एक आई कंप्लीट प्लांट बना सकता है। दिस इज द टाइम जहां पर आप अपने घरों में पड़े हुए पोटैटो को भी एज उसमें आप ट्यूबर देख सकते हो, उसमें न्यू प्लांट का ग्रोथ देख सकते हो। तो वेट अ मिनट, आई एम शोइंग यू हियर ओनली। सो यस स्टूडेंट्स, दिस पोटैटो आई केप्ट फॉर यू। तो यू कैन सी दैट दीज आर द स्कार्स एंड फ्रॉम दीज स्कार्स you can easily see the plant, new plant is growing outside, ठीक है। तो यस, हर एक आई जो भी इसके अंदर स्कार है, कहीं पर छोटा प्लांट है, कहीं पर बड़ा प्लांट है। तो यस, हर आई से रहा है। तो बेसिकली आई विल शो यू यस हेयर। तो यस, यहाँ पर आप लोग इजीली देख सकते हो कि सब के सब आई में से नया प्लांट ग्रो कर रहा है। तो यस, इट इज लाइक दिस। तो ये सारे के सारे जो पार्ट अंदर दबा हुआ पार्ट है, दीज आर नोन एज आई एंड ईच आई इज हैविंग द एबिलिटी टू ग्रो इनटू द कंप्लीट प्लांट। सो दैट्स हाउ द न्यू प्लांट ग्रो फ्रॉम द पोटैटो प्लांट। तो पोटैटो इज व्हाट? इट इज अंडरग्राउंड स्टेम। ये हमें धरती के अंदर से मिलता है, तो हमें कभी कभी डाउट हो जाता है कि इट इज ग्रोइंग फ्रॉम द रूट्स, बट नो, इट इज नॉट ग्रोइंग फ्रॉम द रूट्स, इट इज ग्रोइंग फ्रॉम द अंडरग्राउंड स्टेम। ये अंडरग्राउंड स्टेम में से ग्रो करता है, ठीक है। सो यस, दिस इज हाउ द न्यू प्लांट ग्रो फ्रॉम द स्टेम ट्यूबर। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज बाय द स्टेम बल्ब्स। It is also a part of the stem, it is also an underground stem, but when the stem will swellen out, then it is not known as the stem tuber. In particular case of onion, lily, इन केसेस में हम लोग इसी सेम प्रोसीजर को, सेम चीज को बस ट्यूमर ना बोल के बल्ब्स बोल रहे हैं, एंड रेस्ट ऑफ द प्रोसेस इज कंप्लीटली सेम। तो ठीक है, देन वी कैन से दैट अनियन इज अगेन ग्रोइंग फ्रॉम द अंडरग्राउंड स्टेम, नॉट फ्रॉम द रूट्स, ठीक है। ये हमें क्लियर होना चाहिए। तो बेसिकली ये हमारा स्टेम का पार्ट है। कुछ एक पार्ट जो है वो स्टेम का अभी सॉइल के अंदर है, वो स्वेलो हो गया है टू प्रिजर्व और टू रिस्टोर द फूड। और उसके अंदर क्या है कि जो फूड स्टोर कर रहा है वहां पर वो शेप ले लेता है एज लाइक द अनियन और द लिली। तो इस तरह से हमारे पास जो ग्रो होती है, जो नई कोई भी चीज बनती है, उसको हम बोलते हैं स्टेम बल्ब्स। दे आर ग्रोइंग फ्रॉम द स्टेम बल्ब्स। तो बेसिकली दे आर ऑल्सो हैविंग द रिजर्व फूड इन इट। Sorry. And they are also growing as in the same manner as like the potato. Okay, so yes, this is basically how the new plant grow from the stem bulb. Next one is rhizome. Rhizome. In case of the ginger, in case of the turmeric, क्या होता है कि उनकी शेप इस तरह की होती है। आप लोगों ने देखा, इरेगुलर शेप होती है, किसी भी तरह की शेप हो जाती है। तो यस, बेसिकली दे आर ऑल्सो ग्रोइंग फ्रॉम द अंडरग्राउंड स्टेम। और इस पर्टिकुलर केस में जो अंडरग्राउंड स्टेम अपने फूड को स्टोर करने के लिए जो फूल जाती है, स्वेलो हो जाती है, उस पर्टिकुलर चीज को हम बोलते हैं राइजोम। तो बेसिकली द जिंजर एंड द
turmeric, they are growing by the rhizome of the stem, and they are also growing in the same manner as like the potato. So basically we are just changing the names and just changing the examples. तो आपको examples याद करनी है, rest the procedure is exactly same in all the cases. ठीक है. So yes, here in the ginger and in the turmeric, जब नया प्लांट ग्रो करता है बर्ड्स से, यहाँ पर क्या होता है, छोटे छोटे बर्ड्स प्रेजेंस होते हैं, जैसे हमने किए थे ना ईस्ट के केस में. ईस्ट के केस में जैसे छोटे छोटे बर्ड्स होते हैं, दे बर्ड्स गेट सेपरेटेड आफ्टर दे गेट मेच्योर एंड ग्रो इनटू द कंप्लीट ऑर्गेनिज्म. एज लाइक दिस इन ओनली द जिंजर एंड द टर्मरिक प्लांट और द फूड आर हैविंग बर्ड्स ऑन दैट, दे गेट डिटैच्ड फ्रॉम द बॉडी ऑफ द प्लांट आफ्टर दे गेट मेच्योर एंड ग्रो इनटू द फूड. ठीक है. तो इस तरह से हमारे पास जिंजर और टर्मरिक में ग्रोथ होती है. नाउ नेक्स्ट वन इज सब एरियल स्टेम. सब एरियल स्टेम क्या होता है? सब एरियल स्टेम, सब एरियल स्टेम, इस पर्टिकुलर केस में क्या होता है कि आपके पास ये एक पूरा का पूरा प्लांट है, इसके अंदर जो स्टेम है उसके जो नोड्स है, नोड्स आई टोल्ड यू कि दीज आर द नोड्स जहां पर लीव्स ग्रो होती है. कई बार क्या होता है कि ये नोड्स दे आर हैविंग द सब एरियल ग्रोथ और दे कंप्लीटली ग्रो लाइक द मैनर. तो ये ग्रो करती हैं, बढ़ती जाती हैं एंड दे आर क्रीपिंग टूवर्ड्स और विद द ग्राउंड लेवल. ये क्या होता है कि ये मूव नहीं करती हैं या मतलब प्लांट के साथ सीधे नहीं चलती हैं. दे डोंट हैव दैट स्ट्रॉन्ग स्टेम कि दे ग्रो अपवर्ड, तो दे आर मूविंग विद द ग्राउंड लेवल. तो ग्राउंड लेवल के साथ बढ़ती हैं एंड दे ग्रो द फूड. इसमें फ्रूट बनता है, फ्लावर बनता है, जो भी बनता है, लीव्स वगैरह बनके जो भी इसमें फ्लावर बनता है. बट दे ऑल्सो हैव द एबिलिटी टू ग्रो इनटू द रूट. इनके अंदर से रूट्स भी बनती हैं और इस तरह से बेसिकली ग्रोथ होती है. तो दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट एज अ सब एरियल स्टेम. सब एरियल स्टेम का मतलब है कि वो एरियल में मतलब हवा में ग्रो करती है, ग्राउंड लेवल से करते हुए, ग्राउंड लेवल के साथ चलते हुए, एंड अल्टीमेटली वो एक नया प्लांट बनाते हैं जिसके पास एबिलिटी है रूट्स बनाने की, लीव्स बनाने की और विद द टचिंग ऑफ द लेवल ऑफ द सॉइल. तो इस तरह से पूरा नया प्लांट बन जाता है. तो यस, एक स्टेम से पूरा नया प्लांट बन जाता है. इस पर्टिकुलर टाइप की ग्रोथ को हम बोलते हैं सब एरियल ग्रोथ. एंड दिस इज प्रेजेंट इन द एग्जाम्पल्स लाइक स्ट्रॉबेरी, लाइक ग्रासेस एंड लाइक मिंट. तो यस, दीज आर ग्रोइंग इन दिस मैनर. I am repeating it again, the subaerial stem. In this particular kind of the growth, the nodal part of the stem grow into the branch, and this branch is not so strong कि it grow in the upward direction. They will move with the ground level, उसको टच करते हुए ग्राउंड लेवल के ऊपर 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 ग्रो करते जाते हैं. And from the each node, new plant will grow, which is having their own roots, own leaves, own flowers. So like this, they will produce the complete plant with the touching in contact with the soil. They are still in contact with the soil. तो यस, वो अभी भी सॉइल के कंटेक्ट में है और कम्प्लीटली ऑर्गेनिज्म, कम्प्लीटली प्लांट बना दिया है. और इस तरह से जो इस पे लीव्स के बाद जो फ्लावर्स आएंगे, दे प्रोड्यूस द फ्रूट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लांट. तो इन दिस मैनर स्ट्रॉबेरी, मिंट एंड ग्रासेस, these kinds of plants grow like this manner only. Now last one is known as combs. Combs are the thickened round stem होती है जिसके लास्ट में buds होते हैं. तो यस, थिकन्ड राउंड स्टेम जिसके लास्ट में बर्ड्स होते हैं और ये बर्ड्स कंप्लीट ऑर्गेनिज्म या कंप्लीट फूड, क्योंकि हम प्लांट्स का केस कर रहे हैं, तो कंप्लीट फूड बना देता है, वेजिटेबल्स बना देता है या फ्रूट्स बना देता है. तो ठीक है. तो यस, दिस हैपन्स इन द केस ऑफ ग्लैडियोलस. तो यस, ग्लैडियोलस, तो ये हमें ग्लैडियोलस के केस में दिखाई देता है. So yes, this is the vegetative propagation by the stem only. हमने ये पांचों केसेस सिर्फ और सिर्फ स्टेम के केस में किए हैं, either by the tumor, either by the bulb, rhizome,
सब एरियल स्टेम और क्रैम्स, सारे के सारे स्टेम से ही ग्रो कर रहे हैं, बट इन 3 केसेस वी आर सेइंग द सेम थिंग विद डिफरेंट नेम्स, और सब एरियल में थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है. सो दिस इज हाउ द वेजिटेटिव प्रोपेगेशन टेक्स प्लेस इन द स्टेम. Next one is the vegetative propagation by the roots. So yes, the plants like sweet potato, dahlia, तो ये सब plants क्या होते हैं कि they can be grown if the root is cutted with the nodes. उसके अंदर जहां पर बर्ड्स वगैरह प्रेजेंट है उसे कट करके अगर हम सॉइल में ग्रो करते हैं देन दे फॉर्म द कंप्लीट फूड और कंप्लीट प्लांट, जहां पर हमारे पास जो खाने वाला पार्ट होता है या फ्रूट्स होते हैं दैट आर स्वीट पोटैटो, दलिया एंड सो मोर. So these are basically grown by the roots. So this is basically the vegetative propagation by the roots. Now last one is the leaves. Leaves के अंदर क्या होता है कि best example is Bryophyllum. Bryophyllum की leaf इस तरह की होती है कुछ. तो yes, इसके अंदर basically it is having so many nodes on the marginal parts of the leaf, and each and every bud is having the ability to grow into the complete plant. यहाँ से नए नए प्लांट उगना स्टार्ट हो जाते हैं, बनना स्टार्ट हो जाते हैं, एज आई शो इन द केस ऑफ द पोटैटो. तो वैसे ही यहाँ पर हर एक बड में से नया प्लांट ग्रो होता है, एंड वी कैन कट द बडेड पार्ट ऑफ द लीव एंड ग्रो इनटू द सोइल, देन इट विल फॉर्म द कंप्लीट प्लांट. तो बेसिकली हम कंप्लीट प्लांट कैसे कैसे ग्रो कर सकता है हम वो कर रहे हैं. सो बेसिकली इन दिस पर्टिकुलर केस new plant will be grown with the help of the leaves only, so it is known as the vegetative propagation by the roots, by the leaves. Now the next is vegetative propagation by the artificial means. Why we are doing the vegetative propagation by the artificial means? Because they are simple, faster, produce the identical plant and are cost effective. So they are having so many advantages, so we are using this technique artificially also. We are doing the vegetative propagation by us also. हम खुद भी ये प्रोसीजर करते हैं ताकि हम अच्छी वेराइटी, कॉस्ट इफेक्टिव और फास्ट या सेम प्लांट्स को ग्रो करवा सकें. उसके अलावा भी बहुत सारे एडवांटेजेस हैं. सो वी आर गोइंग टू डिस्कस द आर्टिफिशियल मेथड्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन वन बाय वन. सबसे फर्स्ट हमारे पास आता है कटिंग मेथड. In this cutting method, what we are doing, basically we are having the stem, they are having the nodes and internodes. मैंने आपको बताया birds होते हैं इसके ऊपर. So basically we will cut the stem from the root, from the birds or nodes we can say. उसको हमने अलग plant में grow करवा दिया. जहाँ पर soil है वहां पर हमने grow करवाया, उसको sunlight में रखा, पानी दिया, nutrients दिए, सब कुछ किया. Then after some times we will see the roots will grow out from the stem and ultimately it will grow as a new plant. तो यहाँ पर हमने देखा we are doing the cutting method. हमने plant की stem को cut कर दिया from the nodes और the bud sides और उसको grow करवाया, तो इसीलिए इसका नाम cutting पड़ा. And the rose, Bryophyllum, these kinds of plants we can grow by this method. Now second one is known as layering. Layering में क्या होता है? As the name suggests, we are doing some layering. Layering कैसे करते हैं? So yes, as this is a complete plant, उसकी बहुत सारी stems हैं. ये एक complete plant है जिसकी बहुत सारी stems हैं. And this is root जो soil के अंदर है. So yes, one of the stem जिसके अंदर nodes हैं, internodes हैं, हमने उसका क्या किया? उसका stem लिया, लंबा सा stem लिया और उसको दूर लेके जाके उसके पास ही सोइल के अंदर उसको डाल दिया. सोइल में डालते हुए वी मेक श्योर कि इसके ऊपर की जो लेयरिंग है, जो बाक है, वो हमने रिमूव कर दिया और फिर हमने उस पर्टिकुलर एरिया को सोइल से कवर कर दिया. सो आफ्टर सम टाइम्स वी विल सी दैट द रूट्स एंड द स्टेम विल ग्रो आउट फ्रॉम द लेयर्ड पार्ट ऑफ द प्लांट. वहां से ग्रो करना स्टार्ट कर देता है. दैट मीन्स नाउ द प्लांट इज रेडी टू ग्रो. फिर हम इसको कट कर देते हैं यहाँ से ताकि वो पुराना जो पेरेंट प्लांट है दैट विल रिमेन एज इट इज एंड न्यू प्लांट विल ऑल्सो ग्रो बाय द प्रोसेस ऑफ लेयरिंग. सो बेसिकली हमने लेयरिंग की, यहाँ से हमने फिर अगला लेयर बना दिया, फिर उससे जब नया प्लांट ग्रो किया उससे अगला फिर लेयर बना दिया. तो वी आर डूइंग दिस प्रोसेस बेसिकली इन द लेयरिंग. सो दिस प्रोसेस इज नोन एज लेयरिंग. लेयरिंग में बेसिकली हमने क्या किया? पेरेंट प्लांट है उसका एक स्टेम लिया, उसको हमने सोइल के अंदर डाल दिया और जो पार्ट सोइल के अंदर था वी मेक श्योर दैट कि वी आर रिमूविंग बार्क बिफोर द सोइल टू बी पुटेड ऑन इट.
तो वो bark रिमूव करने के बाद आफ्टर सम टाइम वी कैन सी दैट कि न्यू प्लांट विल ग्रो आउट फ्रॉम दिस बरीड पार्ट। तो इस तरह से जब नया प्लांट बनता है दिस इज नोन एज लेयरिंग। एंड थर्ड वन इज ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग का प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है और वी आर यूजिंग इट इन अ लार्ज नंबर। अच्छा पहले ये करते हैं कि लेयरिंग हम यूज कहाँ करते हैं। वी आर यूजिंग दिस प्रोसेस ऑफ लेयरिंग इज अगेन इन रोज, बोगनविलिया एंड इन जैस्मिन। तो इन सब जगह पे हम लेयरिंग का प्रोसेस यूज करते हैं। नाउ थर्ड वन इज ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग में हमने आपने कभी भी अगर प्लांट ग्रो देखा है, कभी भी आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन या टीवी में कभी भी, तो आपने देखा होगा कि इस तरह से हमारा एक स्टेम है, उसमें ऐसे कट कर देते हैं और कट करने के बाद उसमें किसी दूसरे प्लांट का पार्ट डाल दिया, किसी दूसरे का स्टेम डाल दिया, या फिर इसी स्टेम को हमने इस तरह से कट कर दिया। एक पार्ट है प्लांट का जिसके अंदर रूट्स हैं, दूसरे वाला पार्ट है जिसमें रूट्स नहीं है। तो ये जिस पर्टिकुलर पार्ट में प्लांट के रूट्स नहीं है उसको हम बोलते हैं स्कायन, और जिस पार्ट में रूट्स हैं उसको हम बोलते हैं स्टाक। तो बेसिकली स्टाक ऑफ वन प्लांट इज ग्रोइंग ऑन द, नहीं, स्कायन ऑफ वन प्लांट विल बी ग्रोइंग ऑन द, ये मान लो एक प्लांट है हमारा ए और ये है हमारा बी प्लांट। बी प्लांट का मैंने रखा स्टाक और ए प्लांट का मैंने यहाँ ले लिया स्कायन। तो यस, दो प्लांट्स के मैंने टेढ़ा कट करके दोनों को इकट्ठा किया, इसके ऊपर क्लॉथ से इसको रैप कर दिया और उसके ऊपर पॉलीथीन बैग लगा दिया ताकि उसमें बैक्टीरिया, इन्फेक्शन सब कुछ ना हो, उसके पानी का ग्रोथ सब कुछ चलता रहे, फूड ट्रांसफर चलता रहे। तो इसलिए मैंने इसको टाइटली बंद कर दिया। सो बेसिकली अब क्या होगा, अब क्या होगा कि न्यू प्लांट विल ग्रो एज अ सिंगल प्लांट। अब वो अपने आप को ये नहीं समझेगा कि दो अलग अलग प्लांट्स हैं। आफ्टर सम टाइम दे विल मर्ज इन ईच अदर और दे विल ग्रो लाइक अ सिंगल प्लांट एंड दे विल ग्रो द मोर फ्रूट्स। तो इस तरह से हम मैंगोज के केस में ये सब कर सकते हैं, ग्राफ्टिंग का प्रोसीजर। इसके अलावा हम ग्राफ्टिंग कर सकते हैं रोज, पियर, लेमन, इन सब के केसेस में हम लोग ग्राफ्टिंग का प्रोसीजर कर सकते हैं। वाई वी आर डूइंग ग्राफ्टिंग, वाई वी आर एडिंग टू डिफरेंट प्लांट्स एंड मेकिंग एज अ वन प्लांट टू ग्रो द प्रोडक्शन ऑफ द फ्रूट। हम प्रोडक्शन ज्यादा करने के लिए, टू चेंज द वेराइटी और एनहेंस द वेराइटी ऑफ द फ्रूट। कि क्या है कि एक का हमें पता है कि उसका रूट सिस्टम अच्छा है लेकिन दूसरे का फूड प्रोडक्शन अच्छा है, तो हम दोनों को मिक्स कर देंगे जिससे हमारा फ्रूट भी बनेगा और नई क्वालिटी का भी बनेगा। इससे कई बार क्या होता है कि ये वाला प्लांट जो स्टॉक है वो अलग तरह का आम बना सकता है, ऊपर वाला स्काइन अलग तरह का आम बना सकता है। व्हेन वी आर मर्जिंग दीज टू तो एक नया मॉडिफाइड आम बन जाता है। सो बेसिकली फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द मॉडिफाइड fruits, for the production of more fruits, for the production of enhance the quality of the fruit, तो इन सब चीजों के लिए we are doing the grafting procedure. So yes, we have done the procedure of cutting that is happening in rose and bougainvillea, then in layering rose, bougainvillea and jasmine, then grafting mangoes. उसके अलावा अगर हम बात करें grafting is mangoes, rose, pear, lemon. So basically 3 processes of artificial propagation we have done today and tissue culture we will do tomorrow. So yes students, this is all about for today's class. Thank you.